सत्यनारायण भगवान ये क्यों चाहते हैं कि मतलब सब लोग उनकी पूजा करें? मतलब आईआईटी में एडमिशन मिल गया, मुझे बॉयफ्रेंड भी अच्छा मिल गया, मैंने खूब बॉयफ्रेंड के साथ में घूम भी लिया, एंजॉयड लाइफ टू द हिल, डिड एवरीथिंग एंड गॉट मैरिड. Expressing myself the way I was kind of, ashamed of myself. अरे वाह, निवेदिता is looking so bright, and there is a picture. Thank you, Didi. नमस्ते दीदी. नमस्ते. नमस्ते. निवेदिता ना वही रिश्ता बनाती है जैसे कि मतलब वो आपके साथ, अरुणा जी जो आपके साथ बनाती है, मेरे को मुझे बहुत अच्छा लगता है. So Tehzeeb is boundaryless fellow, and now he's doing PhD from Aligarh Muslim University, and somehow because of the internet he will only speak up and maybe video if whenever his network allows. So Tehzeeb, this is Nivedita, and she is a spiritual teacher and a mother and a very good smiling person all the time. This much I know about her. और वो रेकी और क्या क्या, आप अभी अपने बारे में कुछ बता सकती हैं निवेदिता, आप क्या कर रहे हैं? रेकी एंड आजकल ज्यादा आई एम डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग्स. अरे वाह, टैरो कार्ड रीडिंग्स. आप कौन से डेक से कर रहे हो? कौन से वाले डेक? राइडर वेट भी है, और आई हैव वो एंजल एंड टैरो कार्ड्स भी, एंड ओशो. ओवर टू यू अरुणा. तो अरुणा, मैंने इंट्रोडक्शन इनका पहले ही ग्रुप में दिया हुआ था, एंड आई नो हर एज माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेंटर एंड सपोर्टिंग मी ऑलवेज. और वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री के बहुत बड़े वो हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो मैं जानती हूँ. एंड शी लिव्स इन दिल्ली. एंड अरुणा टुडे हैज, एंड आई वाज, thank you for joining us. Nani, that's wonderful. Nani, thank you very much for lifting me from, I keep getting, entangled in, things, and somehow have that tendency not to, come out and, do what I want. Anyways, so today I am I'm supposed to share my life, and actually I'm very happy to share it also, somewhere. So and since it is in the context of spiritualism, so I would say, whatever understanding that I say that I have now is a product of, whatever life I have lived. It was not there to begin with, है ना. It is now. तो जो भी मतलब मेरा कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है, और वो मतलब डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई है. So I will start from my childhood itself, and at that time, I have a very distinct memory of me, traveling through the stars, not as a person, but simply like, as if I'm a part of that, I am just moving in the stars, and then I had a feeling ki, okay, I'm falling fast. So and usually it was like, ki I wake up from a dream, and then I realize ki, okay, I'm here, I'm sleeping in my bed or something like that. But that was a very frequent experience. Then another thing that was happening at that time was that usually I will sit in the morning and gaze into the sun, and I will keep gazing for hours, and I could see the rays connected from my eyes to the sun, something like that. And that was also a feeling of being one with the whole kind of universe. So at that time it was not like that for me, but right now what spiritualism is for me is like being one with whatever
like the universe is, being a part of it, in sort of continuum, and nothing differs in me and what is there in the universe. So what I'm trying to say is that in the childhood, to begin with, it was already there. It was already there, which I realize now. है ना? At that point of time, it was just just gazing into the sun, or falling from the stars. So and एक मिनट growing up, एक मिनट अरुणा, Sure. आप भी थोड़ा सांस ले लो. आई एम लाइक सरप्राइज, क्योंकि अभी मैं ना आज हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, तो हनुमान जी का मेरे को जो आप बोल रहे हो वो हनुमान जी जैसे वो बच्चे थे, when he was a child he thought that the sun is an orange and he gulped the orange. मेरे को somehow वो connection लग रहा है, और definitely I can connect with this and maybe Nivedita also, that we now realize that those were the experiences which were guiding us, or at that time they seem like हाँ हो गया जो. और आपने बोला कि रेज से आप कनेक्टेड होते हो, तो मतलब मैं आपको 10 साल से जानती हूँ और मैं ये सब नहीं जानती थी, तो व्हाट अ सरप्राइज एंड व्हाट अ नाइस वे कि आप बचपन से ही इस तरह के एक्सपीरियंसेस कर रहे हो. इवन मेरे को भी इतना नहीं पता कि दीदी सो कनेक्टेड विद ऑल यूनिवर्सल एनर्जीज. लाइक आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू हियर इट. बहुत अच्छा लगा सुन के. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. या प्लीज कंटिन्यू. ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे. या So gradually, I lost it somewhere, and then it came to gods and goddesses. Like I wanted to, like I will go in the temple and do Brihaspati Dev ka puja and listen to the story, and I will, see. I will feel that okay. I will also get the whatever Brihaspati Dev gives, so I will get it certainly. So some kind of assurance will come to me, and I was doing that, and also listening to कि भाई तब संतोषी माता का बड़ा ये होता था, तो हम कि नींबू नहीं खाना है, मतलब मैंने व्रत भी नहीं रखा तो भी मुझे नींबू नहीं खाना है, and the fear that started coming. And then at that time when we used to listen to stories like सत्यनारायण जी की कथा जो होती है घरों में, तो वो हम सुनने जाया करते थे, और उसमें सुनते सुनते मतलब वहां पे मुझे 2 क्वेश्चन तब बहुत मतलब बड़े प्रोमिनेंटली आते थे, बट भगवान के डर की वजह से मैंने कभी पूछे नहीं. वो था कि भाई सत्यनारायण भगवान ये क्यों चाहते हैं कि मतलब सब लोग उनकी पूजा करें. मतलब IIT में एडमिशन मिल गया, मुझे बॉयफ्रेंड भी अच्छा मिल गया, मैंने खूब बॉयफ्रेंड के साथ में घूम भी लिया, एंजॉयड लाइफ टू द हिल्ट, डिड एवरीथिंग एंड गॉट मैरिड. उनको क्यों चाहिए पूजा? ठीक है. और दूसरा ये कि अगर मान लो किसी ने पूजा नहीं की, तो ये तो बुरी बात है ना कि आप उनकी नाव डुबो दो, उनका सब कुछ डुबो दो, है ना. तो मतलब ये क्या तरीका हुआ? तो समथिंग लाइक कि राजा की वो रानी है, तो रानी का हार चोरी हो गया और फिर उन लोगों को जेल में डाल दिया गया. तो मैंने कहा भाई ये दिस इज अनफेयर सॉर्ट ऑफ, है ना. तो ऐसा मुझे लगा करता था उस समय. और ऑन टॉप ऑफ दैट दैट टाइम वी सॉ अ मूवी जिसका नाम था रामायण. तो रामायण मूवी में आई सॉ कि वो सीता जी जो है लास्ट में जो है वो जमीन में समा जाती हैं, जब उनको बोला जाता है जो भी, तो वो समा जाती हैं. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर माई लिटिल माइंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आई वॉज काइंड ऑफ टॉर्चर्ड फॉर मंथ्स ऑल टुगेदर कि ऐसा क्यों हुआ. And somewhere my this thing was getting very strong. And उसका एक और भी कारण था कि जो है when I was born in my family, मतलब my दादी was very upset because I was probably the third or fourth girl child to be born in the family. तब तक कोई मतलब लड़का नहीं था और लड़कियां होती जा रही थी. तो I was like मतलब she hated it कि मतलब she just wanted कि मतलब उनका मेरी मम्मी चली जाएं और वो अपने लड़के की दूसरी शादी कर लें और लड़का पैदा हो जाए और जाने क्या क्या, है ना, something like that. And later
later I got to hear these stories from my mother, and somewhere I had a feeling कि यार ये मतलब बस लड़कों का ही सब कुछ है क्या. तो वहां से मेरा ये जो ना ये फेमिनिस्ट जो एक फेमिनिस्ट कहना चाहिए, या मतलब being conscious of being a girl, है ना, being conscious of being a girl or and being worried about being a girl, that thing started. तो somehow मतलब मुझे वो बहुत ज्यादा ये हो गया कि मतलब आई हैव टू डू समथिंग. मतलब एक होता है ना कि अंदर से आपको एक बड़ी जलन सी या बड़ी गुस्सा सा आ जाता है कि यू गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट. तो वो चल रहा था ऐसे ऐसे चलते हुए, एंड देन लाइफ टुक ओवर एंड आई बिकेम कि माय फादर्स आई, एप्पल ऑफ द आई, है ना, कि मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, और अच्छे से मतलब पढ़ाई ढंग से, मतलब मैंने कि एक था उनका कि मतलब आई शुड बी द टॉपर, तो आई बिकेम द टॉपर एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ अराइवल कि हाँ आई एम डूइंग वेल. तो वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. और फिर उसके बाद में ये भी कि ठीक है मुझे यहाँ समथिंग लाइक दैट. तो सब कुछ हुआ, और यहाँ तक मतलब इट वाज लाइक कि इसके साथ साथ में एक और करंट चल रहा था कि व्हेन ये जो टॉपर वाला जो एंगल जैसे ही खत्म हुआ, बिकॉज दैट वाज समथिंग मैंने घुट्टी में पिया परफेक्शन, ये वो चीजें, तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये था कि कि कुछ तो भी मतलब मैं बनूंगी या मैं कुछ तो भी करूंगी. तो फिर माय फादर अगेन थ्रू अ टारगेट फॉर मी कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट बन जाना चाहिए, बिकॉज उनकी बड़े मतलब वो दो आर लाइक किंग्स एंड व्हाटएवर. सो दैट वाज द नेक्स्ट स्टॉप, है ना. तो मतलब तब तक वो सब चल रहा है. अब सिविल सर्विसेज आई डिड टेक द एग्जाम, एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कभी ये नहीं सोचा, और कभी मतलब सोचने की जरूरत भी नहीं समझी कि मुझे करना क्या है, और मैं मतलब मैं क्या चाहती हूँ, है ना. तो इट वाज लाइक द क्रिएशन ऑफ माय फादर, एंड in between there are going to be sort of small interruption started happening. And at some point of time one of my friends shared कि भाई like what is an administrative job, आपको मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, आपको लोग जो पे नहीं कर रहे हैं उनका घर कुर्क करना होता है, ये वो करना होता है. और फिर then he was running to after somebody who took out a हनुमान जी की मूर्ति somewhere and wanted to make a temple on a government land. तो वो उसके पीछे भाग रहा था चप्पल लेकर. समथिंग लाइक दीज स्टोरीज केम टू माय लिसनिंग, एंड आई वाज लाइक यार मैं तो कभी किसी का घर नहीं कुड़क कर सकती. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसने कितना पैसा कमाया और उसमें से उसे कितना टैक्स देना है या क्या करना है. एंड आई लॉस्ट हार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उसके बाद में इट वाज जस्ट फॉर द हेक ऑफ टेकिंग द एग्जाम दैट आई वाज टेकिंग द एग्जाम, एंड आई फेल्ड मिजरेबली. एंड आई फेल्ड 3 attempts. ठीक है, उसमें बीच में आप चले गए इंटरव्यू देने, आपने मीन्स क्लियर कर लिया, बट आई फेल्ड. तो बट द थिंग इज कि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, बट मी कमिंग टू टर्म्स विद माय फेलियर, दैट वाज अ insurmountable task. I kept ignoring it कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, I will do something good with my life, but it caught with me. I had no relationship with failure till that point of time. I was a topper and I remained a topper and it kind of ate me up from inside. So It shook you. Yes, it shook me. It kind of numbed me. I stopped speaking. I stopped expressing myself the way I was. I was kind of ashamed of myself. My relationship with me became that of shame, that of disgust, that of failure, or matlab my relationship with myself got totally messed up at that point of time. But I was not aware. I was, outwardly everything was going on. शादी हो गई, honeymoon हो गया, ये हो गया, वो हो गया. But somewhere it kept working inside, and as a result, I
fell ill, and fell ill for a long time, 1.5 years to be precise. I did not know what to do. So I kept on going on and on and on, and then finally one fine day the doctor says, he started counseling me for my death. How should I behave with my husband? How should I behave with my child? Amu was 8 months at that point of time, and like I should get ready, because so he said I asked him, there is no medicine. He said your bacteria had got resistance, so then we can give you second grade medicines which can basically affect your brain. And brain was a commodity which I was very proud of. So I was totally shaken, and I all throughout my way coming from the TB hospital, I was weeping for 1.5 hours, thinking that shit, what happened, ये क्या हो गया मेरे साथ में, और ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में, मैं मर तो नहीं सकती हूँ, है ना. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि मेरे पास इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मैं कैसे मर जाऊँ, ऐसे कैसे मर जाऊँ मैं. तो that was a time, for the first time I was very proud of being a science student, and मेरे पास क्या तर्क वितर्क और ये सब चीजें हैं, लेकिन उस समय मेरे सारे फंडे गोल हो गए थे. एंड आई वांटेड कि आज की डेट में अगर कोई मुझसे उस समय कहता कि तुम्हें चप्पल सुंघा के हम ठीक कर सकते हैं, तो आई वुड हैव गॉन फॉर दैट ट्रीटमेंट, right? And that was a time, fortunately, at the beginning of this illness, I met Vedji, and he gave me medicine. I returned it to him and I told him कि नहीं, मैं आपसे दवाई नहीं लूंगी, मैं नहीं खाऊंगी आपकी दवाई, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं आपकी दवाई 6 महीने खाऊं. Because he told me that बेटा इसका इलाज जो है एलोपैथी में नहीं है, ये 6 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन आप एकदम ठीक हो जाओगे. So 1.5 years later, I went back to the same person, and he said कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अब भी 6 महीने में ठीक. थोड़ा सा ये वैद जी के बारे में बताइए. वैद जी कौन है, कहाँ रहते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर है कि क्या है ये? वैद जी अभी तो इस दुनिया में नहीं है, वो निलोहा एक गांव है यहाँ मेरठ के पास में, वहां पे रहते हैं, और अभी वैसे उनका भतीजा प्रैक्टिस करता है. तो he had a history of which I saw with my friends getting cured of illnesses for which there is no treatment in allopathy, like asthma, like skin diseases and all those things. So that was a time I had I had given up and I had gone into his कहना चाहिए शरण में, ना जैसे जाके सरेंडर कर दिया कि भाई अब तो आप बचा लो मुझे. तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो लोग तभी आते हैं जब कंकड़ियों से खेलने लगते हैं, है ना, जब उनके पास में कुछ नहीं बचता तब वो मेरे पास आते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है तुमने ऐसा किया, कोई बात नहीं. एंड ही सेड कि आई विल नॉट चार्ज यू फॉर योर ट्रीटमेंट, एंड ही गॉट मी फिट. वो टाइम था जब फिर अरुणा, एक मिनट, तो फिर आपको डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर 8 महीने बोल रहा था और आप 1.5 साल बाद उसके पास गई, तो मतलब 1.5 साल आपने एलोपैथी किया, आप ये बोल रहे हो? 1.5 साल मैंने एलोपैथी किया. मैंने दिल्ली का कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एम्स नहीं छोड़ा. सबके पास गई मैं, सबसे मैंने ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ किया, लेकिन nothing happened, and it was continuous. And then finally he got me out. So why I am narrating this part of the my life is because it was very important for me to come down from the pedestal of science and accept other human beings as as equal to me. Till that point of time I thought that I am somebody different and I have some I have big brains and other people are just useless and वो फालतू हैं, something like that. That was the attitude till that point of time. That was the time I जब मैंने उनको नमस्कार किया मन से, दिल से, and I started believing in power of other human beings, whether they are educated or they are not educated, something like that. So this was my
a big shift happened at that point of time. फिर उसके बाद since I got okay, so then I started reconstructing my life again, and fortunately we got an opportunity and I opened this institute, MIIT, and in like मतलब we grew like anything. 1996 से 1999 में मतलब we were over at least 30 centers all over India, and a newspaper running and what not. So मतलब काफी उसमें मतलब हमने growth किया, सब कुछ किया, and then suddenly and then we being new entrepreneurs, we thought ki we will invest in IT sector was growing at that point of time. So तो जो earnings हमने वहाँ MIT से निकाली वो सारी हमने IT sector में लगाई, और IT sector में लगाने के बाद में 2001 or 2 or 3 पता नहीं, that IT bubble burst and we could not get an investor. Earlier there were so many investors जो हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे, और उनके कई सारे ऑफर हमने मतलब ठुकराए, और उसके बाद में there was nobody to kind of go back. So the situation was that we had these 30 centers running. They had already paid 1 year's fee, which we have already invested in Netrial, and we didn't have funds to run MIIT at that point of time. So that situation, it was like कि मतलब पहाड़ की चोटी पे चढ़ के और वहां से आप you are in a free fall, गिर रहे हो, something like that was happening. And finally the situation was कि it was bad. It was really bad. मतलब I have never gone through कि like the police, the cases, and the work, and the tension of the faculty payments, and not happening, whatever. So I can tell you कि in those initial 15 days of that crisis, my entire hair gone white from black. पूरा वो white हो गया. Anyways, and I was like कि मतलब तब तक मतलब it was a lot of complaint कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसे मतलब IT bubble burst भी क्यों होना था, या मतलब what wrong did I do. And that time I thought कि मतलब ये business is or like doing something on your own, it has too much risk, and probably I will not be able to do it again, है ना. So 2003 I called it quits कि भाई बंद कर देते हैं, खत्म. और उसके बाद में then I focused on writing a book, and then I focused on looking for a job for myself कि let me do the job, उसमें मतलब कम से कम मेरी responsibility नहीं है about finances and all, and I started looking for one. अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि when this business was like going into doldrums, I got introduced to Landmark at that point of time. 2001 or 2002, I got introduced to Landmark. Landmark is, जो मेरा कहना चाहिए, जो क्रम्बल होने की जो प्रोसेस होती है ना, जब आप गिर जाते हो, जब आपकी हड्डियां टूट जाती हैं और सब कुछ हो जाता है, उससे पहले मैं लैंडमार्क पहुंच गई. ठीक है. एंड उसका मतलब इतना बड़ा एडवांटेज, या कहना चाहिए इतना सहारा मुझे मिला उससे कि instead of crashing and crumbling and going down to pieces, somehow I started in the midway itself, I started reconstructing myself. And why I am mentioning Landmark is that taught me the power of thoughts, power of creating yourself, and connection of thoughts and illnesses. This came like to me कि whatever you think, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये तो फालतू थॉट्स हैं, ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, है ना. हम बहुत बार मतलब ऐसे इग्नोर करते हैं कि ठीक है, ये तो बेकार की बात है, ये तो बेकार की बात है, ये बेकार की बात है. बट I realized
इन दे जो भी वो 5 से 7 साल का मेरा जो टाइम रहा, कि एवरीथिंग यू से it is an energy given to the universe, and it will come back to you at some point of time, and it will tell you what it has done. So and whatever you think, that is also an energy which will express itself. गुड बैड जजमेंट आप बाद में कर सकते हो कि वो क्या हुआ, पर अगर आपने जो भी सोचा है ना, जो भी सोचा वो, अगर मतलब आपने मतलब आपने दिल से सोचा है, जो कहते हैं ना, जो अंदर से निकल के आता है, वो सोचा है, तो वो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. और ये मैंने मतलब होते हुए देखा, बिल्कुल होते हुए देखा, और लाइफ में एक जगह नहीं, बहुत जगह होते हुए देखा ना. तो somewhere this gave me kind of the power to sort of change my thoughts, or give a direction to my thoughts, and then really taking out the whatever power thoughts have in terms of action, in terms of creation. I got connected with that in this whole process. ठीक है. और फिर yes, अरुणा जी, अना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें पॉज कॉमा डाल रही हूँ. और ये जो आपने बोला ना कि थॉट whatever we think gets created and that world sends us back, तो इसका मतलब एक सेंटेंस में हम लोगों ने किताबों में भी सुना है, but like, can you speak more about it? What part of landmark told you that? And it had for me, it's from as a मतलब as a listener, मैं तो सोच रही हूँ आप जब IAS मतलब कर रहे थे, तो ऑलरेडी आप एक साइकिल ऑलरेडी वहां पर देख चुके थे, and you had recreated yourself as an entrepreneur, and you had recreated yourself as a mother, you recreated yourself as a CEO and a businesswoman. So you had recreated, you knew the process of going down, coming back, going down, coming back. तो फिर ये 2003 वाला जो आप उतना बता रहे हो, उसमें क्या फर्क था? हाँ, देखो क्या है कि पहले मैंने किया, और मतलब उसको किया तो मैं कॉन्शियस नहीं थी कि ये जो है ये किस वजह से हो रहा है. ठीक है, आई वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, बट हियर व्हाट हैपेंड, इट गॉट connected not only in the consciousness, it got connected in the language also. So somewhere जो चीज थी, बट मतलब मैं कभी उसको जानबूझ के नहीं कर सकती थी. इट वॉज जस्ट दैट कि हाँ, मतलब जो भी जहां भी मैं रह रही हूँ, जो भी मुझे सूझ रहा है मैं कर रही हूँ, बट उसके बाद में वो चीज बड़ी कॉन्शियस लेवल पे आ गई कि ये हम कर सकते हैं ना. तो now it makes sense. तो मतलब अगर हम लोग जाते भी रहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ रुकावटें भी देखते हैं, तो वी मे नॉट बी कॉन्शियस दैट ये रुकावट क्यों आई, फिर हम लोग चल पड़ते हैं. तो उसको एनालाइज नहीं करते हैं या सोचते नहीं है उस बारे में, आप ये बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल. मुझे जो आज के टाइम में जो मैं कंक्लूजन निकालती हूँ, वो ये निकालती हूँ कि जितनी डिफिकल्टीज आपको आती हैं, बेसिकली वो आपको एक दूसरा लेवल देके जाती हैं, है ना, दूसरा लेवल देके जाती हैं, या कहना चाहिए कि अगर आप मतलब उसमें अपने को सस्टेन करते हो, तो यू गेट टू सी समथिंग बियॉन्ड दैट. बट इफ यू गिव अप, तो वो जो है ना, वो लर्निंग वहीं पे अधूरी रह जाती है. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेचर का प्लान ही ऐसा है कि डिफिकल्टीज से आप लर्न करते हो, और डिफिकल्टीज आपको मतलब आगे बढ़ाती हैं अपनी सोच में, अपनी समझ में. तो वो चीज मुझे इसमें मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छे से हुई कि हाँ, ये हुआ तो मतलब लाइक किसी समय पे मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि भाई
बहुत अच्छा हुआ कि मेरे जाने बिना ही वो इतना मेरे को जो भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इट काइंड ऑफ मेड मी सी थिंग्स विच वर नॉट विजिबल फॉर मी अदरवाइज। और बहुत अरुणा सारी जी, चीजें। अरुणा जी, हाँ, एक और बात मैं समझ रही हूँ कि जिस तरह से आप इसको स्टोरी की तरह समझा रहे हो हमें, तो यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस या कॉन्फिडेंस और यू हैव थॉट थ्रू इट। वरना कोई दूसरा पर्सन होता तो वो काफी अरे मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि हम लोग कई बार उस तरह से भी बताते ना, अरे मेरे साथ ये हुआ, मैं तो इतनी टॉपर थी, मैंने ये किया, मैं तो आईआईटी थी। तो वो उस तरह से भी उसको मतलब बोला जा सकता है, लेकिन जिस लहजे में आप बता रहे हो तो वो मतलब ये दिखाता है कि आपने उस पर काफी काम किया हुआ है, वरना फिर ये लहजा ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये आपके डिमीनर या इसके आर्टिकुलेशन से ये समझ में आ रहा है कि हम उसको मतलब एक क्या बोलते हैं, शेक्सपियरियन ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा की तरह नहीं आप उसको सुना रही हैं। आप उसको सुना रही हैं, मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये किया। सो दैट इज लाइक इंस्पायरिंग मी। हाँ, तो अब इसके बाद मैं एक एक और चीज इसमें कहना चाहती हूँ। तो इसमें जो एक बहुत बड़ा सा रोल रहा है, जो कि मैं कहती हूँ खट्टा मीठा कड़वा सब कुछ है ना, दैट इज द रोल ऑफ माय हस्बैंड। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब दी I did not know anything about him till I got into MSc here in IIT Delhi. So one fine day he came to meet me, and till that time I did not know anything about him. तो उससे पहले मतलब एक आध कंपटीशन में he was a judge or something because he was a third year student and I was a fresher in MSc in IIT Delhi. So so that time he asked me कि are you the same Aruna Sharma that topped in Allahabad board? I said yes. तो उसके बाद में then कि मैं मुनीश कुमार हूँ, मैं आपके पापा से मिला था वहां पे लखनऊ में जो फंक्शन हुआ था। I said fine. फिर उसके बाद में देन वन फाइन डे इन हॉस्टल दिस फेलो कॉल्ड। तो उस समय मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई वाज वरिड अबाउट द वो जैम सेशन जो भी चल रहा था वहां पे उसके लिए। तो ही केम एंड ही मतलब वो उन्होंने आवाज आवाज लगाया कि अरुणा शर्मा आपके लिए गेस्ट हैं। तो मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने मतलब एक जैसे कहते हैं ना जाते जाते आप देखते हो, मैंने देखा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। ठीक है, दिस आई डिड नॉट टेल हिम, अदरवाइज वो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाए। तो दैट हैपेंड एंड समवेयर यू नो दैट मोमेंट आई न्यू दैट दिस इज द पर्सन। लाइक है ना, ऐसा कोई मतलब डिटेल प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बट आई न्यू इन दैट मोमेंट कि दिस इज द पर्सन, है ना। बट यू नो आई काइंड ऑफ स्टॉप माई सेल्फ कि मतलब दिमाग मतलब खराब मत करो अपना, ठीक है। तो ये तो एक वो वाला मोमेंट आ गया इंटरमिशन, जब वो हीरो और हीरोइन मिलते हैं और रामलीला में राम और सीता के जब आंखें मिलती हैं, तो उस वो वाला मोमेंट मेरे को समझ में आ रहा है। अब मैं ऐसे वाले कमेंट नहीं दे सकती, इसके लिए उसके बिहाफ में मैं ये कमेंट दे रही हूँ। तो निकिता हंस रही है, लेकिन मैं मतलब मुझे ये लगा जिस तरह से आपने कि मेरे इट्स स्किप्ड हार्ट बीट, मतलब कि वो देखते ही रह गए ऐसे। जो वो रामलीला में होता था ना, एक पूरा एपिसोड उसी में था कि वो वन में मिले, और वो वाला मेरे को एपिसोड याद आ रहा है।